we're not actually building animals. We're building ghosts. The rate at which AI is progressing, I think we might have AI that is smarter than any human by the end of this year. These like sort of ethereal spirit entities, because they're fully digital and they're kind of like mimicking humans, and it's a different kind of intelligence. And then probably by 2030 or 2031, call it 5 years from now, AI will be smarter than all of. I think we're talking about a technology here which will allow you to create new things. AI can write you excellent, imitative verse that sounds Elizabethan. It cannot write you Shakespeare. But on a practical basis, I expect on a day-to-day basis people's lives to be significantly enhanced with it across everything they touch. AI प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स, दिस इज़ द यूनिट 1 जो आपकी बुक में दिया गया है। 3 मेन टॉपिक्स हैं इसमें। व्हाट इज़ AI प्रोजेक्ट साइकिल, कौन से स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ AI, कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ AI एथिक्स एंड रूल्स। सो दिस इज़ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। तो इसके जो क्वेश्चंस है पिछले किसी भी पेपर में नहीं पूछे गए हैं, बट वी विल मेक श्योर कि ये पार्ट कवर करें ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए भी 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन देन अराइजेज इज व्हाट इज AI प्रोजेक्ट साइकिल। सो इन द वर्ल्ड कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी चीज़ अगर किसी को क्रिएट करनी है तो देर आर सर्टेन स्टेजेस। वो जाके डायरेक्टली उन चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, देर हैज़ टू बी सम लॉजिकल फ्लो। सो इन AI project cycle means project cycle is a step by step plan for building AI project. So आपका जो AI डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइज करवा देता है। ये सारे जो स्टेप्स है लॉजिकली फॉलो करेंगे तो आपका जो AI प्रोजेक्ट है दैट विल बी सक्सेसफुल इन नेचर। एंड देन फाइनली वंस यू आर done with the project, you can revisit the steps, maybe you can enhance the steps so that it improves over time. So just like there is nitrogen cycle, अगर आपने water cycle के बारे में पढ़ा होगा, similarly AI project cycle is also a stepwise procedure, but it does not mean it ends. So for example, the first step is problem scoping. You try to understand why and where is the problem. Moving on to the data acquisition part, एक बार आपने डिफाइन कर दिया कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है तो आप डेटा कलेक्ट करने जाते हो। जैसे आपने डेटा कलेक्ट किया, यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द डेटा। आप उसमें से क्या क्या इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हो, कौन से चार्ट्स बना सकते हो। After you understand your data really well, you try to model it. Model it in the sense, then you try to create a solution using AI. This is the part where AI is used. And after you have created an AI model, you evaluate it so that you understand ki what is the accuracy of this AI model. How efficient would it be in a real world scenario? What are the other things that you should do to improve it in what are the other things you need to do to improve it further? And जो 6th step है that is AI deployment. This part is not in your syllabus, but what it means is once you are finished with all these steps, you release it. You release it in the real world for the users to use it. So this part is known as AI deployment. ये आपके subject में नहीं है इस time पे, but this is something which is good to know. So the first stage, as I explained, is problem scoping, where you set the goal, you understand कि आपको क्या problem solve करनी है, where you state the problem clearly. आप एक problem statement लेते हो, उसको अच्छे से define करते हो, so that everyone who is working on the team understands कि आप कर क्या रहे हो. Then you also define certain success metrics. How does success look like? अगर आपका जो project है वो successful हुआ तो वो कैसा दिखने वाला है. And you also identify the users, कौन होने वाले हैं इस project के users. For example, an AI tutor, an AI based teaching assistant. So उन लोगों के लिए who are the students, what will it teach, how will you create it? All these things come under the problem scoping part, where you try to define what is the problem that you're trying to solve with AI. So this stage is called problem scoping. Stage 2 is data acquisition, where you gather the data, because all the AI models, all the AI solutions require data in one form or the other. You have to collect the data. And this data can come from many places, mostly internet के through आता है data. But अगर किसी के पास private data है तो you ask them to share it with you. अगर आप surveys कर रहे हो काफ़ी सारी cities में, online records ढूंढ रहे हो government से,
या फिर सेंसर्स का डेटा भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल रेडियो सेंसर्स है, इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, गाड़ियों में सेंसर्स लगे होते हैं। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, बिकॉज ऑनलाइन रिकॉर्ड्स आप कंप्यूटर विजन के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? कंप्यूटर विजन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें ऑनलाइन रिकॉर्ड्स का फ़ायदा नहीं है, बट उसमें सेंसर्स का बहुत फ़ायदा है। सिमिलरली अगर आप कोई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर टेक्स्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको सर्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑनलाइन रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वन थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट डेटा एक्विजिशन इज कि ऑलवेज यूज़ ट्रस्टेड सोर्सेज। जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, मेक श्योर कि आपका जो डेटा है वो करेक्ट है, वो सही है, उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है। अगर मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो वो आपको बाद में एडिट करके उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एआई मॉडल के अंदर गलत डेटा भरा तो आपका जो एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। सो वंस यू हैव कलेक्टेड द डेटा, यू ट्राई टू एक्सप्लोर इट, यू लुक फॉर पैटर्न्स कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, या फिर अगर आपको अपने डेटा को अच्छे से समझना है, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट डेटा है, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेयर इज़ दिस टेक्स्ट डेटा कमिंग फ्रॉम, आर देयर एनी कॉमन टॉपिक्स प्रेजेंट, या फिर आर देयर एनी कॉमन वर्ड्स प्रेजेंट, और इज देयर एनी इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? व्हाई डज इट मैटर? बिकॉज फॉर एआई मॉडल डेटा इज द फ्यूल, राइट? अगर आपका फ्यूल ही खराब है तो आपका जो एआई मॉडल है वो भी अच्छे से नहीं चलेगा। सो इट मीन्स इन एन एआई मॉडल इफ यू पुट इन गुड स्टफ then the output would also be good, but if you put in garbage then garbage would come out. So that is why data exploitation, data acquisition is important, to make sure that the quality of your data is really good so that you can build better AI with clear understanding of your data. फिर आपका आता है stage 4. This is the part of artificial intelligence, जहाँ पर आप अपना AI मॉडल चूज़ करते हो। नाउ देयर कैन बी वेरियस मॉडल्स लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आपके पास क्लासिफिकेशन है, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है। सो देर आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स विच आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो इन दिस स्टेज द डेटा साइंटिस्ट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओके ये जो प्रॉब्लम है इसमें अर्लियर एक टाइप ऑफ AI मॉडल यूज़ हुआ था एंड इट वॉज गिविंग गुड रिजल्ट्स। सो उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ करते हैं कि कौन सा AI मॉडल मोस्ट सूटेबल रहेगा टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग वाला टास्क है या फिर प्रिडिक्टिंग वाला टास्क है जहाँ पर न्यूमेरिकल प्रिडिक्शंस करने हैं। सो आफ्टर चूजिंग द मॉडल टाइप, the data scientists, the AI engineers, they train the model, they feed all that data into the model so that the model can learn. And जो डेटा अंदर जाता है, इफ़ यू रिमेंबर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्लीनिंग वाला प्रोसेस आता है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस आता है, बैग ऑफ वर्ड्स वाला प्रोसेस आता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। So once you have trained the model, you start getting outputs, you try to test it. You try to test model 1, then you try to test model 2, then you try to test model 3. हो सकता है model 1 की accuracy आई है 91%, model 2 is like 88% accurate, model 3 is 95% accurate. So this is just about the accuracy part, but there are other evaluation metrics like F1 score होता है, precision होता है, and recall होता है. So it all depends on what kind of problem is being solved by this AI model. तो आप इस स्टेज में मॉडल को कंपेयर करते हो। ये सब मॉडलिंग के अंदर ही आता है, बट इसके अंदर भी थोड़े स्टेप्स होते हैं। वंस यू कंपेयर द मॉडल्स, यू अंडरस्टैंड कि ओके एक्यूरेसी 91% आ रही है, आई कैन प्रोबेबली इंक्रीज इट टू 93% बाय मेकिंग सम चेंज इन द डेटा और मेकिंग सम चेंज in the hyperparameters, some changes, or maybe some tune some knobs, right? So that part is known as optimization to make the model work better. And then the last part is evaluation. After building your model, you must test it. Test it where? In the real world. रियल वर्ल्ड में अगर नहीं हुआ, या फिर आपको रियल वर्ल्ड का न्यू डेटा के साथ आप ट्रेन कर सकते हो जो मॉडल ने पहले नहीं देखा है. सो दीज आर द मेट्रिक्स. एक्यूरेसी होता है, प्रेसिजन होता है, रिकॉल होता है. सो टेस्टिंग में वेरियस थिंग्स होते हैं. आप टेस्ट करते हो न्यू डेटा के साथ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग में जो आप डेटा यूज़ कर रहे हो, टेस्टिंग में वो सेम डेटा नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज आपके मॉडल को पता होगा फिर कि आंसर्स क्या है. अगर आप उसको एक नया डेटा दोगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द रियल परफॉर्मेंस. देन एरर्स फाइंड आउट करते हैं, देन यू इम्प्रूव द मॉडल एंड रीरन द मॉडलिंग इफ नीडेड,
राइट? सो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में, साइकिल का मतलब यही है कि स्टेज खत्म नहीं होता है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, चार के बाद पाँच आता है, बट अगेन अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहा है, जो फर्स्ट टाइम में नहीं होता है, देन यू ट्राई टू रिपीट ऑल दिस. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ साइकिल. सिक्स स्टेज आपके एग्जामिनेशन में नहीं है, विच इज़ अ डिप्लॉयमेंट. बट आफ्टर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट मीन्स पुटिंग एआई टूल्स इनटू रियल यूज़, जहाँ पर रियल यूजर्स आपके एआई मॉडल को टेस्ट करते हैं. टेस्ट में नहीं, वो रियल लाइफ में ही उसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाया द यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स या फिर गवर्नमेंट सिस्टम्स. पीपल यूज़ इट, दे सी हाउ इट वर्क्स एंड देन दे गिव फीडबैक. फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट, क्योंकि वंस यूज़र स्टार्ट यूजिंग द एआई मॉडल, उनके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे या फिर उनको लगेगा कि ये मॉडल और थोड़ा अच्छा हो सकता था. सो इन दैट वे द फीडबैक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड डिप्लॉयमेंट में उसका बहुत फ़ायदा होता है. सो दीज आर द 6 स्टेप्स इन एआई प्रोजेक्ट साइकिल. प्रॉब्लम स्कोपिंग, जहाँ पर आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो. डिफाइन करने के बाद आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्टेबल सोर्सेज, अच्छा डेटा आपको कलेक्ट करना है. देन यू ट्राई टू एग्जामिन द डेटा, यू ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स, यू ट्राई टू ड्रॉ ग्राफ्स, यू ट्राई टू फाइंड कॉमन टॉपिक्स. वंस यू अंडरस्टैंड द डेटा रियली वेल, आपको एक आइडिया लगेगा कि ओके, डेटा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. नाउ आई कैन स्टार्ट टू बिल्ड एंड ट्रेन द एआई मॉडल. एआई मॉडलिंग में भी आप एक ही मॉडल यूज़ नहीं करते हो. मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 आप चेक करोगे. देन यू विल कंपेयर कि कौन सा वाला अच्छा चल रहा है. देन आई विल सेंड इट आउट टू evaluation, where you test the AI model's performance. Once you are satisfied कि okay, at least 90% accuracy तो आ रही है, now I can deploy it. Deployment के बाद जो AI है वो लॉन्च हो जाता है into real application, मोबाइल applications होती हैं, गवर्नमेंट systems होते हैं. Then आपको real users के थ्रू feedback आने लगता है. Second topic of AI project cycle is AI domains. We all know that AI learns from data and the type of data depends on what the goal of AI is. जैसे हम लोगों ने बात की थी पहले कि अगर टेक्स्ट बेस्ड डेटा है तो आप टेक्स्ट बेस्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व कर पाओगे, उससे आप कंप्यूटर विजन वाली प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे. सो दैट इज व्हाई वी हैव डिवाइडेड द डोमेन्स ऑफ AI इनटू 3 पार्ट्स: नंबर्स, पिक्चर्स एंड टेक्स्ट और लैंग्वेज. सो टेक्स्ट और लैंग्वेज आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, नंबर्स आता है स्टैटिस्टिकल डेटा और डेटा साइंस के अंदर, वेयर एज पिक्चर्स आता है कंप्यूटर विजन के अंदर. सो 3 डोमेन्स होते हैं एआई के. फर्स्ट इज द स्टैटिस्टिकल डेटा. इस चीज़ को हम लोग डेटा साइंस भी बोलते हैं, जहाँ पर आप चेक करते हो कि डेटा में प्रीवियसली क्या हुआ था, आप थोड़ी चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हो. वेयर कंप्यूटर्स कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड फाइंड मीनिंग इन दिस डेटा. तो आपने अगर देखा होगा जब हम लोग डेटा एक्सप्लोरेशन करते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत डेटा साइंस ही यूज़ होता है. आफ्टर यू कलेक्ट द डेटा इन प्रोजेक्ट साइकिल, you explore data for some patterns, for information. That collecting of data, that analysis of data is also the part of statistical data or data science. Second domain है computer vision, जिससे जो computers हैं they try to analyze the information they get from cameras. So जब हम लोग बोलते हैं computer vision lets the machine see, वो जैसे humans देखते हैं वैसे नहीं देखते हैं. They just try to टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैमराज. कैमराज में भी डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है, पिक्चर्स होती हैं, बट बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, पिक्सल्स होते हैं, बाइनरी डिजिट्स होते हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है. वो इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर प्रोसेस करता है एंड देन इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि ओके, इमेज में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, वीडियोज़ में ये सारी इमेजेस प्रेजेंट है. सो यूजिंग कंप्यूटर विजन यू कैन टर्न इमेजेस इनटू डिस्क्रिप्शंस. आप समराइज कर सकते हो कि ओके, इस पिक्चर के अंदर एक कैट है या फिर डॉग है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, मे बी एक कार है, कार का कलर क्या है. एंड देन द कंप्यूटर कैन ट्राई टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द अदर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट. इट कैन ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फेसेस. आपने देखा होगा मोबाइल फोन्स के अंदर आजकल एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम अवेलेबल होता है. सो इस फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का जो बेसिस है वो है कंप्यूटर विजन. थर्ड टॉपिक है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द टेक्स्ट बेस्ड प्रोसेसिंग.
So NLP helps computer to understand human language. Again, it does not understand, but it can process the information such that it can find meaning in the words, and it can also understand what people are trying to say. इसका एक फ़ायदा क्या है कि आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास चैटबॉट्स आ गए हैं, जैसे सिरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया। आप वॉइस कमांड से फ़ोन को चीज़ें करने के लिए बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको अपना अलार्म सेट करना है, सो यू कैन टॉक टू सिरी, यू कैन टॉक टू अ वॉइस असिस्टेंट, एंड देन यू कैन गेट योर वर्क डन। ठीक है, सो ये 3 डोमेन थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट अप इज एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई। सो फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सिंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी न्यू फील्ड, तो सबको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ काम करेगी या कौन सी चीज़ काम नहीं करेगी। हो सकता है एआई कैन बिकम बैड, और मे बी एआई कैन बिकम रियली गुड, और मे बी एआई कैन डू स्टूपिड थिंग्स। यू डोंट नो हाउ इट विल परफॉर्म, राइट? सो अगर आपको एआई को एक ऑनेस्ट एंड इक्वालिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर आपको चाहिए कि आपका जो एआई है वो डिस्क्रिमिनेट ना करे, तो आपको एथिकल फ्रेमवर्क्स चाहिए। एथिकल का मतलब है, एथिक्स इज अबाउट नोइंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, है ना? सो एथिकल फ्रेमवर्क्स हेल्प इंश्योर कि जो चॉइसेस हम लोग ले रहे हैं वो दूसरों को हार्म ना करें। So why do we need ethical frameworks? So there are millions and billions of humans in the world, and everyone thinks differently, right? So for example, some people are vegetarian by nature, and some people eat non-veg, right? So can you say that vegetarian is good and non-vegetarian is bad, or like vegetarian is bad, non-vegetarian is good? So जो जितने भी differences हैं humans के बीच में, वो सब कहलाते हैं बायस। सो जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि जो उनके समझ में है वो ज़्यादा सही है, एंड इसकी वजह से अनफेयरनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। सो एआई, what it is doing in the back end is AI always is making some decisions कि कल इतनी बारिश होने वाली है, या फिर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम में वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपका फ़ोन अनलॉक करना है नहीं। सो ये जो सारे डिसीजंस हैं, इट कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द ह्यूमंस विच आर हु आर क्रिएटिंग दिस एआई। सो वी नीड टू मेक श्योर जब भी एआई एक एडवाइस दे रहा है या कोई भी डिसीजन ले रहा है, दैट इज़ फेयर एंड गुड। सो दैट इज़ वाई एथिकल फ्रेमवर्क्स इज़ नेसेसरी, सो दैट अगर फॉर एग्जांपल मेक्सिको में कोई एआई बना रहा है वर्सेस इंडिया में कोई एआई बना रहा है, इसका ये मतलब नहीं हो कि इंडिया वाला एआई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है मैक्सिकन से, या फिर मैक्सिको वाला एआई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है इंडियन एआई से। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल था अमेज़ॉन। अमेज़ॉन, आई होप यू हैव हर्ड अबाउट इट, इट्स अ वेरी बिग कंपनी। सो उनके पास एक हायरिंग टूल था जहाँ पर लोग अपने रेज्यूमेज दे रहे थे, लोग अप्लाई कर रहे थे जॉब्स के लिए। तो उनके एआई ने क्या किया, वो मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगा व्हेन कंपेयर टू फीमेल्स। So this was not because of AI, but this was because of the humans that worked on this AI. So उनके जो biases थे, जो उनके unfairness थी, वो AI के अंदर आ गया, and उसकी वजह से वो मेल्स को ज़्यादा preference देने लगा। So this is why we need ethical frameworks. So जो ethical frameworks हैं और जो ethical rules हैं, वो 2 टाइप के ग्रुप्स में आते हैं। एक इज़ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स, और यू कैन ऑल्सो से सब्जेक्ट स्पेसिफिक रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंट रूल्स मिलेंगे, फिजिक्स में डिफरेंट रूल्स मिलेंगे, केमिस्ट्री में डिफरेंट रूल मिलेंगे, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पर भी हेल्थ केयर के रूल्स थोड़े अलग होते हैं, नो वन शुड गेट हर्ट। फाइनेंस में अलग रूल्स होते हैं, नो वन शुड सफ़र लॉसेस। गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वल, और कंट्री शुड डेवलप फर्दर। सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स होते हैं एआई से रिलेटेड, बट देर आर ऑल्सो सम वेरी कोर वैल्यूज़ और कोर रूल्स जो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन राइट्स, यूजफुलनेस ऑफ एआई, या फिर गुड कैरेक्टर। दिस डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट इंडस्ट्री इट इज़ बीइंग यूज्ड इन, बट दीज आर सम कोर रूल्स लाइक ऑनेस्टी हो गया, या फिर हार्ड वर्किंग हो गया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस में भी कुछ कोर रूल्स होते हैं, करेक्ट? सो दीज टाइप ऑफ रूल्स हेल्प अस डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर एआई एक्शंस। इसकी वजह से एक
सेट ऑफ रूल्स क्रिएट हो जाता है कि आपको पता है कि जब आप एआई बनाओगे उसको ये सारे रूल्स तो फॉलो करने ही हैं. सो वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स क्या है? देयर आर 3 टाइप्स. दे आर द कोर वैल्यूज दैट गाइड डिसीजंस फॉर एआई. जैसे जस्ट बात की थी हम लोगों ने, राइट बेस्ड, इट फोकसेस ऑन ह्यूमन राइट्स सो दैट द एआई डज नॉट हार्म और ट्रीट अदर पीपल फेयरली. सारे ह्यूमंस की कुछ राइट्स होती हैं एंड द एआई शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि these rights should be always upheld. Second is utility based. What is the usefulness of AI? There are some AI which is completely not useful and there can be some AI which are very useful, right? So how do you differentiate between good AI and bad AI? Some AI which is giving good results for the humans, or some AI which is harming or making the jobs less for humans. And the third is virtue based, which focuses on the good qualities or good intentions of decision makers. So value frameworks में main चीज़ यही है कि आपको पता चले कि आपका जो AI है, it is trying to follow certain rules, certain ethical principles like honesty and fairness, creating best results, not harming humans, and focusing on human rights. So this is the essential part of value based frameworks. फिर आपके बुक में एक एग्जाम्पल है बायोएथिक्स का. बायोएथिक्स इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, जहाँ पर आप हॉस्पिटल से डील करते हो, मेडिकल फील्ड में डील कर रहे हो एआई से. सो उसमें थोड़े मेन आइडियाज़ हैं जिसको बोलते हैं बायोएथिक्स. बायोएथिक्स का मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड गुड और बैड चीज़ें क्या है. रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी. आप किसी भी पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते हो कि उन्हें ये ट्रीटमेंट लेनी है या फिर ये मेडिसिन खानी ही पड़ेगी. इट इज़ the decision of the patient. Second is do no harm. Definitely अगर आप मेडिकल या हॉस्पिटल में डील कर रहे हो तो no human should be ever hurt. Every human should be benefited and they should be treated equally. So bioethics क्या है? Bioethics is a set of rules for healthcare and life sciences which ensures कि AI is used ethically in this field. So AI can be in health, AI can be in education, AI can be in finance. हर जगह पे AI यूज़ हो सकता है. तो हर जगह के जो मेन आइडियाज़ होते हैं वो डिफरेंट है. यहाँ पर हम लोगों ने हेल्थ के आइडियाज़ डिस्कस किए हैं. So these were the principles of bioethics. अगर आप लर्न कर लोगे then it is really good. So why are we studying ethics at all? Because AI does not know right from wrong unless and until a human teaches it. And how does a human teach an AI? अगर किसी सही ह्यूमन ने उसको चीज़ें सिखाई एआई को तो वो अच्छी होंगी, बट अगर गलत लोग एआई को कुछ गलत चीज़ें सिखा रहे हैं तो वो सारी वो जो इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड पे आ सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएथिक्स दैट यू हैव टू लर्न. So we will quickly jump on to 2 or 3 questions just to make you understand what are the type of questions that can be asked from AI project cycle. First question is, why clearly explain the problems at the start of an AI project? आपको कोई भी प्रॉब्लम को क्लियरली एक्सप्लेन क्यों करना होता है स्टार्टिंग ऑफ द एआई प्रोजेक्ट में, सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या है. एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो उसका जो सक्सेस है वो दिखना कैसा चाहिए. सो ये सब चीज़ें अगर आप डिफाइन करोगे तो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन दैट एआई प्रोजेक्ट. सो क्वेश्चन 2, हाउ आर एआई मॉडल्स ग्रुप्ड बाय द इंफॉर्मेशन दे यूज़. 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी. एक है नंबर्स, एक है टेक्स्ट और एक है वीडियो और इमेजेस. So based on this, there are 3 AI domains. Question number 3, what does the system primarily do with statistical data? Statistical data मतलब numbers है. मैंने आपको ये बताया था कि ये चीज़ डेटा एक्सप्लोरेशन में भी यूज़ होती है. जब आप अपना डेटा एनालाइज करते हो, पैटर्न्स फाइंड आउट करते हो, एनालाइज करते हो, तो उसमें स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ होता है. सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर.